إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز حاضرین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، ہم یہ بات بارہا سن چکے ہوں گے کہ ہمارا دین اسلام جن احکامات کو ہمارے لیے لایا ہے ان احکامات کا مقصد اس سماج اور معاشرے کو، اس سوسائٹی کو ایک بہترین سماج اور معاشرہ بنانا ہے، ایک پرامن اور شانتی والا معاشرہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں، جہاں پر لوگوں کے درمیان آپس میں الفت اور محبت ہو، جو مکمل طور سے ایک خوشگوار معاشرہ ہو. تمام اسلامی تمام احکامات کا یہی مقصد ہے. سامعین کرام، ایک بہترین سماج اور معاشرہ بننے کی ابتدا شادی اور بیاہ سے ہوتی ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی سماج کو آگے بڑھنے کے لیے، سماج کی تشکیل دینے کے لیے شادی اور بیاہ یہ سب سے لابدی اور ضروری چیز ہے. تو کسی بھی سماج اور معاشرے کی جو ابتدا ہوتی ہے، جن مراحل سے گزر کر کے ایک سماج بنتا ہے، ان میں سب سے پہلا مرحلہ شادی بیاہ ہے. ہاں بچوں، شور نہ کرو پلیز. تو اسی شادی بیاہ کے ذریعہ سے سماج کے لوگ آپس میں جڑتے ہیں، خاندانوں کے درمیان باہمی رشتے استوار ہوتے ہیں، سماج کے اندر نسل آگے بڑھتی ہے اور اسی طرح سے سماج اور معاشرہ بنتا ہے. اور یہ بات مسلم ہے کہ کسی بھی سماج اور معاشرے کو اچھا بنانے میں جو لوگ سب سے بڑا کردار اور سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہیں میاں اور بیوی. کیونکہ میاں بیوی کے ذریعے سے ہی سماج کے اندر نسل آگے بڑھتی ہے. اسی لیے ہمارے دین کے اندر شادی بیاہ کو، نکاح کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور مستقل طور سے مفصل انداز میں ہماری شریعت نے شادی بیاہ کے مسائل اور اس کے احکامات کو مفصل طور سے بیان کیا ہے. سامعین کرام، شادی بیاہ کے اندر ایک بہت اہم مرحلہ، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے
وہ ہوتا ہے میاں بیوی کے انتخاب کا مسئلہ، لڑکا یا لڑکی کے انتخاب کا مسئلہ۔ اگر شادی کرتے وقت آپ کا انتخاب اچھا ہے، آپ کا سلیکشن اچھا ہے، تو انشاءاللہ وہ شادی کامیاب ہوگی اور اس کامیاب شادی کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ لیکن اگر لڑکے یا لڑکی کا انتخاب اچھا نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جو آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں جو سماجی خرابیاں، جو اجتماعی پریشانیاں پائی جا رہی ہیں، ان پریشانیوں میں سے ایک بہت بڑی پریشانی خانگی پریشانیاں ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات، خاندانوں کے جھگڑے، ناچاقیاں، کثرت سے طلاق کا ہونا، آئے دن میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا پیدا ہونا، ان سب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ان سب کی ابتدا ہوتی ہے لڑکا یا لڑکی کے انتخاب میں۔ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، اسی لیے ہماری شریعت نے شادی بیاہ کرنے والے کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں کہ جب آپ شادی بیاہ کرنا چاہیں، چاہے آپ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، تو اپنے جوڑے کے انتخاب کے لیے آپ کو کچھ معایر ہیں، کچھ معیار ہے، کچھ اسٹینڈرڈ ہے، اس کی رعایت کرنی ہے اور اس کی رعایت کرتے ہوئے اپنے لیے جوڑے کا انتخاب کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو دین کے اس معیار کی رعایت کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ہماری شریعت میں لڑکے کے انتخاب کے لیے بھی ہماری شریعت نے کچھ معیار اور اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہے، اسی طرح سے لڑکی کے انتخاب کے لیے بھی کچھ معیار اور اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہے۔ تو آئیے ہم مختصر انداز میں شریعت کے اس معیار کو جانتے ہیں جس معیار کو اختیار کر کے اگر ہم شادی کریں تو ہماری شادی ایک کامیاب شادی ہو سکتی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ ازدواجی زندگی میں جو اکثر پریشانیاں آتی ہیں، اکثر پریشانیوں کی جڑ یہی مسئلہ ہے، کیونکہ شادی بیاہ کی ابتدا ہی ہم شریعت کے معیار پر نہیں کرتے ہیں۔ ہماری شریعت نے لڑکا یا لڑکی کے انتخاب کے لیے کچھ معایر متعین کیے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا اپنے گھر کی کسی لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لڑکے کی تلاش ہے، تو آپ کو اس لڑکے کے اندر کون سے اوصاف دیکھ کر کے آپ کو شادی کرنی چاہیے؟ ہماری شریعت نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ اگر اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہو، اپنی عورتوں کی شادی کرنا چاہتے ہو، تو ایسا لڑکا تلاش کرو جو دیندار ہو، اخلاق مند ہو اور جس کے اندر حسن معاشرت اور حسن سلوک پایا جائے۔ یہ تین اوصاف ایسے ہیں کہ اگر کسی لڑکے کے اندر پائی جائیں تو انشاءاللہ اس لڑکی کے لیے اس لڑکے کا انتخاب ایک بہترین فیصلہ ہوگا۔ پہلا معیار ہے دین، دوسرا معیار ہے اخلاق اور تیسرا معیار ہے حسن معاشرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہاری لڑکی کا یا تمہارے گھر کی کسی عورت کا رشتہ آئے، اسے شادی کا پیغام دیا جائے اور شادی کے پیغام دینے والے میں اگر آپ دیکھتے ہو کہ اس کا دین اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو اس کی شادی کر دو۔ ان لم تفعلوا تکن فتنۃ عریض وفساد، اگر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر، سماج اور معاشرے کے اندر فتنہ بپا ہوگا، لمبا چوڑا فتنہ بپا ہوگا۔ کیسا نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا۔
अगर शादी नहीं करोगे तब भी फितना होगा, और शादी करते वक्त अगर इस मेयार का ख्याल नहीं करोगे तब भी फितना होगा। और वो फितना एक नौइयत का नहीं, बल्कि वो फितना मुख्तलिफ अनवा का के वो फितने होंगे। तो हमारी शरीयत ने जो मेयार बतलाया है वो दीन और अखलाक मेयार बतलाया है। अब आप समाज और मुआशरे में गौर करें कि अगर कोई अपनी बच्ची की शादी करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है? अक्सर लोग, इल्ला मन रहमल्लाह, अक्सर लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि उस लड़के का समाजी स्टेटस क्या है, लड़के के पास मालो दौलत है कि नहीं, लड़का अपने पांव पर खड़ा है कि नहीं, लड़के के पास आला डिग्रियां हैं कि नहीं, लड़के के पास आला तालीम है कि नहीं, लड़के के पास अच्छी नौकरी है कि नहीं, लड़के का खानदान कैसा है, ये सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं। लड़का दिखने में कैसा दिखता है, स्मार्ट और हैंडसम है कि नहीं। अक्सर लोग यही चीजें देख करके अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, और वो मेयार जिसको शरीयत ने उन्हें बताया है उस मेयार को नजरअंदाज करते हैं। बाद में नतीजा ये होता है कि वो शादी या तो नाकाम होती है, और वो शादी या तो तलाक पर खत्म होती है, या मियां बीवी पूरी जिंदगी घिसट घिसट कर गुजारते हैं। और अगर किसी तरह से जिंदगी गुजर भी जाए तो ऐसे जोड़े से आप किसी अच्छी नस्ल की तवक्को नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि लड़के का खानदान कैसा है, किसी बड़े खानदान का है कि नहीं। और एक अजीब बात यह है कि हमारे समाज और मुआशरे में खानदानी किसको कहा जाता है? जब कहते हैं कि फला इंसान बहुत खानदानी है, खानदानी है मतलब उसका बड़ा बिजनेस है, बड़ा परिवार है, उसके पास मालो दौलत है, समाज में उसका बड़ा नाम है, उसको खानदानी कहा जाता है। जबकि यह गलत है, बिल्कुल गलत है। खानदानी वो है जो अल्लाह तबारक ताला के यहाँ खानदानी है। खानदानी वो है जो नेक और दीनदार और अखलाकमंद है। खानदानी वो है जो दीन के मेयार पर पूरा उतरता हो, चाहे वो गरीब और फकीर ही क्यों ना हो। खानदानी वो नहीं है जो अमीर हो। तो ऐसे लोग जो अपनी मालो दौलत की वजह से अपने आप को खानदानी और हसब नसब वाला समझते हैं, वो समझ ले कि वो गलत फहमी में है। वो शरीयत की निगाह में खानदानी नहीं है। वो चाहे अरबपति हो, उनका खानदान बहुत नीचा है अगर उनके अंदर दीनदारी नहीं है। और एक सड़क पर ठेला लगाने वाला और सड़क पर सब्जियां और फल बेचने वाला एक गरीब इंसान अगर वो दीनदार है तो वो खानदानी है। ये खानदानी का मेयार है। लेकिन हमने इस जमाने में अल्फाज के मानी बदल दिए हैं। कोई चोर इंसान है उसको बहुत चालाक समझा जाता है, कोई ईमानदार आदमी है उसको बेवकूफ समझते हैं हम लोग, कोई गरीब आदमी है तो वो हकीर समझा जाता है, कोई अमीर आदमी है गरचे वो बददीन हो तो उसे बहुत आला और आरफा समझा जाता है। ये माईर और ये पैमाने हमने अपने समाज और सोसाइटी के अंदर तय किए हैं, और इसी के मुताबिक इसी पर अमल करके हम अपने बच्चे और बच्चियों की शादियां करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर की एक अच्छी सिफत, कौन आदमी जो अच्छा शौहर बन सकता है, उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। अच्छा इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए अच्छा हो। अच्छा इंसान वो नहीं है जो पूरी दुनिया के लिए तो अच्छा है लेकिन अपने घर में वो खराब है। अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ उसका मुआमला अगर अच्छा नहीं है तो बाहर वो कितना भी अच्छा हो, ऐसा इंसान अच्छा इंसान नहीं है। तो ऐसा लड़का जो आपकी लड़की के साथ हुस्ने सुलूक कर सके, हुस्ने मुआशरत कर सके, उससे अखलाक से पेश आ सके, ऐसा लड़का आपकी लड़की के लिए मुनासिब है। हसन इब्ने अली से पूछा गया, किसी ने पूछा कि मेरे पास एक बेटी है, आप मुझे मशवरा दीजिए कि मैं अपनी बेटी की शादी किससे करूं। तो हसन इब्ने अली ने कहा कि
तुम अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करना जो अल्लाह से डरता हो, क्योंकि अगर वो अल्लाह से डरता होगा, अगर तुम्हारी बेटी से वो मोहब्बत करेगा तो उसकी इज्जत करेगा, उसकी तकरीम करेगा, और अगर वो उसको नापसंद भी करेगा और अल्लाह से डरने वाला है तो उसके साथ ज्यादती और जुल्म नहीं करेगा। तो हमारी शरीयत ने लड़के के इंतखाब के लिए ये मेआर बतलाया है कि दीनदार होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज और मुआशरे में अगर कोई गरीब लड़का है, वो सालों साल उसकी उम्र निकलती चली जाती है, लेकिन कोई आदमी उसको अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, छोटा सा वाकया। सईद इब्नुल मुसय्यिब एक मशहूर ताबई हैं जिनको सय्यदुत ताबईन कहा जाता है। सईद इब्नुल मुसय्यिब बहुत बड़े आलिम दीन थे मदीना के अंदर, इनका बहुत बड़ा हल्का था, बहुत ज्यादा लोग इनके दर्स में हाजिर होते थे। इनके दर्स में एक कसीर इब्ने अबी वदाआ नाम का इंसान हाजिर होता था, बहुत गरीब इंसान जिसका समाज में, समाज की निगाह में कोई स्टेटस नहीं था, बिल्कुल गुमनाम आदमी। उनके दर्स में वो हाजिर हुआ करता था। एक दफा का वाकया ऐसा हुआ कि 2-3 दिनों तक वो इंसान दर्स से गायब रहा। जब 2-3 दिनों के बाद वो वापस आया तो सईद इब्नुल मुसय्यिब ने अपने उस शागिर्द से पूछा कि कहां थे अब तक। शागिर्द ने कहा कि मेरी बीवी की वफात हो गई थी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं उसी में मशगूल था, इसलिए नहीं आ सका। तो सईद इब्नुल मुसय्यिब ने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया ताकि मैं भी हाजिर होता। बहरहाल सईद इब्नुल मुसय्यिब ने उनसे पूछा कि क्या कोई औरत निगाह में है जिससे शादी करोगे, तुम्हारा घर कौन संभालेगा, किसके साथ जिंदगी गुजारोगे। तो हंसकर उन्होंने कहा, उस शागिर्द ने, गरीब शागिर्द ने, उस गुमनाम शागिर्द ने कहा, मुझे अपनी लड़की कौन देगा, मेरे पास 2 या 3 दिरहम के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे अपनी बच्ची कौन देगा। सईद इब्नुल मुसय्यिब के पास एक लड़की थी। लड़की इतनी दीनदार, इतनी खूबसूरत, इतनी अखलाकमंद, तमाम औसाफे जमीला की हामिल थी वो लड़की। यहां तक कि उसके चर्चे पूरे मुल्क के अंदर थे। उस वक्त का जो खलीफा था अब्दुल मलिक इब्ने मरवान उस वक्त का खलीफा था। उस खलीफा ने उस लड़की का चर्चा सुना कि बहुत खूबसूरत और दीनदार लड़की है। उस खलीफा ने अपने बेटे, जो कि वली अहद था, शहजादा था, उस बेटे के लिए, वलीद इब्ने अब्दुल मलिक नाम था उसका, अपने बेटे के लिए सईद इब्नुल मुसय्यिब के पास रिश्ता भेजा। उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं है, दीनदार नहीं है, उससे शादी नहीं करूंगा अपनी बेटी की। यहां तक कि वो इसरार करता रहा। सईद इब्नुल मुसय्यिब को इस जुर्म में उसने कोड़े भी मरवाए, लेकिन वो राजी नहीं हुए और अपनी लड़की खलीफे वक्त के बेटे को नहीं दिया। अब इस शागिर्द का वाकया सुनिए। जब इस शागिर्द ने कहा कि मुझे अपनी लड़की कौन देगा, तो इन्होंने कहा कि मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं। और उसी वक्त मस्जिद में बैठे बैठे चंद लोगों को बुलाया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी इस शागिर्द से कर रहा हूं, और वहीं पर उन्होंने निकाह पढ़ा दिया। पूरे मदीना के अंदर चर्चे हो गए। बहरहाल वो शागिर्द जो था अपने घर गया और बहुत खुश था। रात के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। जब इस शागिर्द ने पूछा कि कौन, तो बाहर से आवाज आई कि सईद। इसका कहना है इस शागिर्द का कि मैंने सोचा कौन सईद हो सकता है, जितने सईद नाम के मेरे पहचान वाले थे सब पर गौर कर लिया मैं उतनी देर में। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा सईद इब्नुल मुसय्यिब हैं। तो मैंने सोचा कि शायद इन्हें अपने फैसले पर शर्मिंदगी होगी और ये आए होंगे इनकार करने की, अब मैं अपनी लड़की नहीं दूंगा और मैं अपना फैसला वापस लेता हूं। उसके बाद सईद इब्नुल मुसय्यिब ने कहा कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और मुनासिब नहीं है कि तुम अकेले रात गुजारो, अपने घर में अकेले रहो। ये लो तुम्हारी बीवी। अपनी बेटी को लेकर के वहां हाजिर हुए और 20,000 दिरहम, एक ऐसा इंसान जिसके पास 2-3 दिरहम से ज्यादा नहीं था, 20,000 दिरहम भी साथ में सईद इब्नुल मुसय्यिब ने उस शागिर्द को दिया। देखिए, हमारे असलाफ का ये पैमाना था, ये मेआर था अपनी बच्ची के लिए शौहर तलाश करने का। लेकिन आज हमारे क्या हालात हैं, हम उस पर गौर कर सकते हैं। बात लंबी हो रही है। इसके बाद हम आते हैं कि अगर कोई इंसान
बीवी का इंतखाब करना चाहता है, कोई इंसान किसी लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसे क्या देखना चाहिए? उसे भी मोटे तौर पर दीन और अखलाक ही देखना चाहिए। अगर कोई किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो पहले नंबर पर दीन देखे, दूसरे नंबर पर उसका अखलाक देखे, और तीसरे नंबर पर कुछ दूसरी चीजें जैसे खूबसूरती, मालदारी, हसब नसब या कुछ ऐसे औसाफ जो दुनिया के अंदर अच्छी चीजें समझी जाती हैं उनको भी देख सकता है, लेकिन पहले नंबर पर उसे दीनदारी को मुकद्दम रखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबे कराम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि लौ अलिमना अय्युल माल खैरुन फनत्तखिदहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बताइए कि कौन सा माल सबसे अच्छा है ताकि उस माल को हम कमाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफज़लुहु लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व ज़ौजतुन मुअमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिही, सबसे बेहतरीन माल जिक्र करने वाली जबान है और शुक्र अदा करने वाला दिल है, और ऐसी मोमिना बीवी जो आपकी मदद करे आपके ईमान पर। अगर आपकी बीवी नेक और दीनदार और ईमान वाली है तो खैर के कामों में मदद करेगी, अगर आपसे सुस्ती और काहली होगी तो आपको उभारेगी, अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको मना करेगी। ये नेक और दीनदार बीवी का फायदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और दूसरी हदीस के अंदर फरमाते हैं कि अद-दुनिया मताउन व खैरु मताए दुनिया अल-मरअतु सालिहा, ये पूरी दुनिया माल और पूंजी है, और सबसे बेहतरीन पूंजी इस दुनिया की अल-मरअतु सालिहा, नेक बीवी है। मालो दौलत नहीं, नेक बीवी सबसे अच्छी पूंजी है, क्योंकि अगर नेक बीवी होगी तो उससे आपकी नेक औलाद होगी, और औलाद से बढ़ करके कोई दौलत इस दुनिया के अंदर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस के अंदर फरमाते हैं कि अरबउम मिन अस्सआदा अल-मरअतु सालिहा, आपने फरमाया कि 4 चीजें बाइसे सआदत हैं, और उन 4 चीजों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज का जिक्र करते हुए फरमाया कि नेक बीवी ये बाइसे सआदत है दुनिया के अंदर। एक और हदीस में आप फरमाते हैं कि मन रज़क़हुल्लाहु इम्राअतन सालिहतन फ़क़द आनहुल्लाहु अला शत्र दीनिही फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी शत्रि सानी, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को नेक बीवी अता कर दी तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया, आधा ईमान उसके पास आ गया। अब जो आधा ईमान बचा है दुनिया की दूसरी नेकियां करके वो अपना आधा ईमान मुकम्मल करे, तो नेक बीवी से शादी होना ये आधा ईमान है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बहुत मारूफ हदीस, कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, कि लोगों की आदत है कि औरतों से शादियां 4 चीजों की बुनियाद पर करते हैं। लोग या तो माल देखते हैं, बाज लोग हसब नसब देखते हैं, बाज लोग खूबसूरती देखते हैं, और बाज लोग दीनदारी देखते हैं। फज़फर बिदात दीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो बाकी चीजें हैं इनको देखना कोई मायूब नहीं है, लेकिन सबसे पहले दीनदारी देखो, सबसे पहले दीनदारी देखो। दीनदारी के बाद अगर ये खूबियां हैं तो अच्छी बात है, वरना दीनदारी को इन खूबियों पर मुकद्दम रखो। लेकिन हमारे समाज और मुआशरे में क्या देखा जाता है, एक लड़की के अंदर क्या देखा जाता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं, लड़की का खानदान कैसा है, और खानदान का क्या मफहूम है मैं बता चुका हूं। हमारे समाज में खानदानी किसको कहा जाता है ये मैं बता चुका हूं। लड़की का खानदान कैसा है, लड़की उम्र खानादारी में कैसी है, लड़की आएगी तो पूरे घर वालों की खिदमत करेगी कि नहीं करेगी, लड़की आएगी तो पूरे घर वालों की इताअत करेगी कि नहीं करेगी, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। लड़की के पास आला तालीम है कि नहीं, लड़की फैशनेबल है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन ये कोई नहीं देखता है कि लड़की का दीन कैसा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी गरीब की बच्ची जो नेक और दीनदार हो उससे शादी करने के लिए तैयार हो, बहुत कम लोग हैं। इसका नतीजा क्या होता है, लड़के या लड़कियों के अंदर दीनदारी के मेयार को पर शादी या मियां बीवी का इंतखाब न करने का नतीजा क्या होता है हम सभी जानते हैं। पहली बात तो यह है
कि बहुत सारे लोगों ने जो मेयार मुतय्यन कर रखा है, जो पैमाना बना रखा है, चाहे लड़की की तलाश में या लड़के की तलाश में, उस मेयार और उस स्टैंडर्ड की तलाश में वो सरगर्दा रहते हैं। बसा औकात, बल्कि बहुत ज्यादा होता है कि लड़की की उम्र निकल गई, उसके मेयार के मुताबिक लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की की उम्र निकल गई, लड़के की उम्र निकल गई, और इसका नतीजा ये होता है कि वो लड़का वो लड़की बुराइयों की तरफ जाते हैं। और बहुत सारी खराबियां इसी वजह से पैदा होती हैं समाज के अंदर कि लड़के या लड़की की शादी वक्त पर नहीं हो पाती है। और वक्त पर शादी इसलिए नहीं हो पाती है कि लोगों ने जो मेयार मुतय्यन कर रखा है उस मेयार के मुताबिक उन्हें लड़का या लड़की मिलते नहीं हैं। इसी तरह से एक खराबी यह है कि बहुत सारे लोग जो नेक और दीनदार हैं लेकिन वो गरीब हैं, उनकी बच्चियां नेक और दीनदार और साहिब अखलाक हैं, लेकिन वो बच्चियां बगैर शादी के बैठी रहती हैं। और इस तरह से होता यह है कि हमारे समाज और मुआशरे में दीन की हैसियत गिर जाती है, एक दीनदार आदमी की हैसियत गिर जाती है। आदमी जानता है कि मेरी बच्ची कितनी भी नेक होगी, कितनी भी दीनदार होगी, अगर मेरे पास माल नहीं होगा तो उसकी शादी अच्छे घर में नहीं होगी, तो उसके निगाह में दीन की हैसियत गिर जाती है, माल ही उसके निगाह में सब कुछ होता है। इसी तरह से अगर दीन के इस मेयार को सामने ना रख करके शादी ना किया जाए तो नतीजा ये होता है कि मियां बीवी की जिंदगी अजीरन हो जाती है। बहुत दफा तो ऐसा होता है कि मियां बीवी आपस में पूरी जिंदगी उनकी समझौते पर गुजरती है। हम सब लोग इसी समाज और मुआशरे में रहते हैं और आप सब लोग जानते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगियां समझौते और मुफाहमत पर गुजर रही हैं। अपने मेयार के मुताबिक उनको जोड़ा नहीं मिला हुआ है। अगर उनके पास कोई परेशानी ना होती तो शायद उनका ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, तो समझौते पर जिंदगी गुजारते हैं। और जो लोग समझौता नहीं कर पाते हैं तो उसका नतीजा आखिर में होता है तलाक होता है, पूरा खानदान बिखर जाता है, बच्चे मुंतशिर हो जाते हैं। ये सिर्फ इस वजह से होता है कि शादी करते वक्त हमने जो शादी का दीनी मेयार है उसको सामने नहीं रखा। इसी तरह से शादी के दीनी मेयार को सामने ना रखने का नतीजा यह होता है कि अगर आपकी बीवी अच्छी नहीं है या आप औरत हैं, आपका शौहर अच्छा नहीं है, अगर मियां बीवी दीनदार नहीं है तो बच्चे दीनदार नहीं हो सकते इल्ला माशाअल्लाह। एक नेक और दीनदार जोड़े से ही अच्छी नस्ल पैदा हो सकती है, एक नेक और दीनदार जोड़े से ही बच्चों की अच्छी और इस्लामी तरबियत हो सकती है। इसी तरह से एक खराबी ये है कि बहुत सारे लोग जिनकी बीवियां दीन के मेयार पर पूरा नहीं उतरती हैं, वो बीवियां सरकश होती हैं, शौहरों के हुकूक अदा नहीं कर पाती हैं, उनका पूरा खानदान, बहुत सारे खानदान आप ऐसे जानते होंगे कि शादी से, बच्चे की शादी से पहले खानदान के लोगों के दरमियान आपस में उल्फत और मोहब्बत थी। बाप और बेटे के दरमियान, माँ और बेटे के दरमियान, भाई बहनों के दरमियान आपस में उल्फत और मोहब्बत थी, सब मिलजुल करके उल्फत और मोहब्बत से जिंदगी गुजारते थे। लेकिन एक खराब औरत, एक खराब लड़की घर में आने की वजह से पूरा खानदान तबाह हो जाता है। आप हर दूसरे तीसरे घर के बाद ये कहानी पा जाएंगे। ये सब क्यों है सामिने किराम? इसकी जो खराबियां हैं, अगर आप बैठ करके ठंडे दिल और दिमाग से गौर करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि समाज के अंदर, खानदान के अंदर जो खराबियां पाई जाती हैं, उन खराबियों की सबसे बड़ी वजह, उसका सबसे बड़ा सबब यही है कि शादी करते वक्त जो हमने दुनियावी मेयार कायम कर रखा है उसके मुताबिक हम शादियां करते हैं और दीन ने जो मेयार हमें दिया है उस मेयार को हम नजरअंदाज करते हैं। एक सहाबी थे, जाते जाते एक वाकया और सुन लीजिए। एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब। जुलैबीब एक बहुत ही गरीब सहाबी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खास तरबियत की थी, लेकिन वो इतने गरीब थे। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो सिर्फ गरीब नहीं थे बल्कि वो गरीब के साथ साथ बदशक्ल थे। उन्होंने दमीम कहा है, बदशक्ल।
اب जुलैबीब एक किसी ऐसे समाज में जहां पर किसी गरीब को और बदशक्ल को लोग अपनी लड़की ना देते हों, ऐसे समाज के अंदर ऐसा इंसान सोच भी नहीं सकता है कि मैं कभी शादी करूंगा। एक दफा का वाकया है कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। लोग क्या करते थे, जब अपनी बच्चियों की, अपनी लड़कियों की शादियां करना होता था उनको, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करते थे। वो मशवरा करने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि मैं अपनी बच्ची की शादी करना चाहता हूं, बहुत खूबसूरत उनकी बच्ची। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास एक इंसान है, मैं उससे तुम्हारी बच्ची की शादी करवा सकता हूं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस शादी में, लेकिन उस इंसान से मैं शादी करवा सकता हूं। उन्होंने पूछा कौन है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब का नाम लिया। वो दंग रह गए। आप सोचिए कि सहाबे कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज पर सर झुका देते थे, लेकिन वो दंग रह गए जुलैबीब का नाम सुन करके। उन्होंने उस वक्त कोई फैसला नहीं किया, कहा मैं थोड़ा अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। सोचिए जुलैबीब की क्या हैसियत थी कि उनको अपनी बीवी से मशवरा करने की जरूरत पड़ गई, वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के बावजूद। अपने घर गए और अपनी बीवी के सामने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है मेरी बेटी के लिए जुलैबीब का। बीवी ने कहा कि जुलैबीब से हम शादी करेंगे? हम कभी नहीं जुलैबीब से शादी करेंगे। बीवी ने साफ इनकार कर दिया। घर के अंदर से बेटी ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। बेटी ने आवाज लगाया, कहा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मशवरा दिया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कभी जाये नहीं करेंगे और मैं जुलैबीब से ही शादी करूंगी। बहरहाल जुलैबीब से उस लड़की ने शादी की। हमारे समाज और मुआशरे के अंदर एक परेशानी यह भी है कि बच्चियों से शादी करने के वक्त उनसे उनका मशवरा नहीं लिया जाता है। कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो नेक हैं, दीनदार हैं, जब उनकी शादियां तय होने लगती हैं वो अंदर से राजी नहीं होती हैं, लेकिन माँ बाप के सामने वो खड़ी नहीं हो पाती हैं और उनकी शादियां हो जाती हैं और बाद में सब कुछ उन्हीं को झेलना पड़ता है। यहां पर देखिए वो बच्ची सामने आई और सामने आकर के उसने हामी भरी और कहा कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना चाहते हैं। तो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर बच्चियों को, औरतों को ये स्पेस देना चाहिए, बल्कि ये उनका हक है। बल्कि इससे भी आगे की बात ये है कि अगर किसी लड़की से उससे पूछे बगैर उसका रिश्ता तय कर दिया जाए, उसकी शादी कर दी जाए उसकी रजामंदी के बगैर, या वो किसी मजबूरी में उसकी शादी की जाए, तो वो शादी, वो निकाह सही नहीं है। तो हमारे समाज और मुआशरे के तमाम लोगों को, तमाम औलिया और उमूर को, तमाम माँ बाप को, तमाम भाइयों को, तमाम गार्जियंस को इस बात की रियायत करनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि मैं अपनी लड़की, अपनी बहन, अपनी बेटी या अपने घर की औरत किस मर्द के हाथ में दे रहा हूं। हम जब बाजार से एक सामान खरीदने जाते हैं दुनिया भर की छान फटक करते हैं, दुनिया भर की तफ्तीश करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो सामान चंद दिनों के लिए हमारे पास रहने वाला है। और हम अपनी लड़की की शादी, हम अपनी लड़की का हाथ एक ऐसे आदमी को थमा देते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता है, जिसके अंदर दीन नहीं पाया जाता है, जो शराबी है, जो जुआरी है, जो लफंगा है। हम ऐसे आदमी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ पूरी जिंदगी के लिए थमा देते हैं। इसलिए यह मसला बहुत गंभीर है, हम सबको सोचना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए। आप यकीन कीजिए, अगर दीनदार लड़के या दीनदार लड़की से शादी होगी तो वो शादी आखिर में कामयाब होगी। गरचे थोड़ी देर के लिए समाज में लोगों की निगाह में आपका स्टेटस डाउन होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपका मकाम और मर्तबा बुलंद होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम को हमें अपने तमाम उमूर में, अपनी जिंदगी के तमाम शोबों में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا للصلاة.